Evening session of Unacademy Cat. My name is Ronak Shah, and today we have with us someone who has made it to IIM Ahmedabad. Yes, that's correct. As you know that IIM Ahmedabad, Bangalore, Indore, and many other IIMs recently announced the results for 2021-23 admissions, and we have with us Mr. Kaivalya Shah, who is from Gujarat, and he made it to IIM Ahmedabad. So in this particular session, he is going to tell us that how did he do it, what all challenges he faced, and how he started his preparation, and how he accelerated, what score he got, and how he converted finally the interview. So Kaivalya, welcome to the session. Thank you, sir. Thank you for Unacademy for giving me this opportunity to address to the large audience. So let me start by this. So first of all the aspirants are, so let me tell you one thing. You are not aspiring the CAT, you are aspiring the MBA. And MBA in itself is a tough journey, so you have to slog for long hours, you have to burn the midnight oil, and that's what CAT demands. So Okay. so keep this attitude and start preparing for your CAT. So मैं पहले अपनी स्टोरी बताता हूँ. हाँ. So I started my CAT prep in the month of April. तो मतलब स्टार्टिंग में जनरली ये होता है कि बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि मतलब ठीक है हो गया अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मतलब इतना मोटिवेशन नहीं होता. तो लास्ट ईयर में भी मतलब ऐसे ही किसी के मतलब लाइव लेक्चर्स देख रहा था कि मतलब सक्सेस को देखा था 8 मई को IIM अहमदाबाद के रिजल्ट अनाउंस हुए. ऐसे ही मैं मतलब किसी की वीडियोस देख रहा था कि हाउ ही क्रैक दी कैट, हाउ मतलब उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी. फिर वहां पे जाके मुझे भी मोटिवेशन मिला कि या मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ अगर मैं कुछ ट्राई करूँ तो. राइट. सो कैवल्य, यू आपने मोटिवेशन की बात बताई, राइट? यू जस्ट मेंशन मोटिवेशन. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज द मोटिवेशन? आई मीन, बिफोर वी गो ahead and we understand your journey, if you can just tell us, tell all our viewers कि मोटिवेशन कैसा हो, मतलब कितना जरूरी है, और क्या आपको भी वो अप एंड डाउन्स मेंटल स्टेट आए थे? यस यस. ओके, तो देखो कैट एक लंबी जर्नी है, तो वी हैव राउंड अबाउट 6 to 7 months टू प्रिपेयर. तो जनरली चीज क्या होती है कि मतलब पहले आप 2 महीने तक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, फिर ऐसा होगा कि 1 महीना ऐसा आएगा कि मतलब बस अब हो गया, अब नहीं करना. ऐसा भी एक टाइम अगर जैसे कि अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो अक्टूबर महीने में मेरे मॉक के जो रिजल्ट थे वो बहुत डाउन चले गए. मतलब मैं जनरली नॉर्मली मॉक्स में स्कोर करता था 97, 98, 99 परसेंटाइल, और मेरे अक्टूबर महीने में सडनली डिक्लाइन हो रहे थे. मतलब कभी 95 गए, फिर 90 गए, कभी 80 चले गए. एक बार तो मैं 20 परसेंटाइल तक में चला गया था. तो 20 उस टाइम पे percentile? 20, yes, 20 percentile? 20 परसेंटाइल. My God, guys, this is amazing. You know, someone who got 20 percentile in one of the mocks, you must have understood what kind of mental state can it have. And from there, he, banked, jumped back, and he performed really well. So कैवल्य, हम ये चीज को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सबको बता देता हूँ, जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, या फिर इफ यू हैपन टू वॉच दिस वीडियो आफ्टर द सेशन इज ओवर, guys, please share your comments in the chat, in the comment section, and do not forget to press the like button, and please share it with your friends. Second, you are watching us live right now, or if you happen to watch it afterwards also, this is Unacademy Cat channel, which is the best channel for your cat and IPMAT preparation, so in India, I can say. And yes, so please subscribe to this channel, and please attend my daily live session which I am conducting every day at 12 p.m. and in the evening 6 p.m. Apart from that, you can also download our Unacademy learning app, and you can also attend many educators free session over there. Educators like Arun Sharma, Minakshi Upadhyay, all are teaching on Unacademy. So what are you waiting for? In fact, one learner is asking, sir, आपका बैच कब से शुरू हो रहा है? I think Smita is asking. Smita, let me just tell you, मेरे कंटिन्यूस बैचेस रहते हैं, आप कभी भी मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन आई विल सजेस्ट यू अ प्रॉपर प्लान टू प्रिपेयर फॉर कैट if you are targeting 21 or 22. So just do one thing, everyone, please join my telegram group, that is unacademy_Ronak Shah. It is given in the description, so please explore description. You can also directly ping me on telegram. My id is Ronak_live. Right, Kaivalya, so coming back to, we were talking about motivation, and yes, you went through up and downs. तो एक चीज बताओ कैवल्य कि आपने शुरू कैसे किया था, मतलब क्या आपका मैथ्स पहले से ही अच्छा था? आपका बैकग्राउंड क्या है? आपका 10-12 परसेंटेज वगैरह क्या है? वो थोड़ा सा बताओगे व्यूअर्स को? तो आई एम
an engineer. So my 10th was 93, 12th was 94, and my graduation is 88. So being an engineer मतलब मुझे था कि okay math and so fonts and DLR थोड़ा सा अच्छा था relatively. तो मतलब ये जज करने के लिए सबसे पहले मैंने एक मॉक दिया. तो मुझे पता चला कि फॉन्ट एंड DLR इज ओके बट वर्बल में मतलब बहुत कम था. मतलब वर्बल के तो मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम 3-4 महीने मेरी कैट की प्रेप तक मेरे कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो रहे. ओके. तो मुझे पता था कि वर्बल में मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो व्हाट आई स्टार्टेड इज मतलब मैंने भी काफी लोगों से बात की काफी सीनियर्स की स्ट्रेटेजी देखी. तो एक चीज मुझे पता चली कि वर्बल इज नॉट अबाउट लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग द हैबिट. तो मतलब एक ये चीज मुझे लगी कि कैट में आपको एक डिसिप्लिन मतलब एक हैबिट बनानी पड़ेगी. मतलब आपको एक रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी. लाइक डेली अगर आप 1 घंटे रोज पढ़ोगे तो मतलब 6 महीने के बाद मतलब वर्बल तो मतलब आपको आसानी से होने लगेगा. अच्छा. और ये चीज मुझे दिखी भी थी. मतलब 1 महीने के बाद मेरे वो ऐसा होता है मतलब स्टॉक मार्केट में जैसे कर्व ऊपर बढ़ते बुल रन चलता रहता है वैसे ही मतलब मेरे भी मतलब वर्बल के स्कोर धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहे थे. तो मतलब वो दिख रहा था. और जब ऐसे स्कोर्स बढ़ते हैं ना वही आपको मोटिवेशन मिलता है. मतलब आपको कभी भी ऐसे एक्सटर्नल मोटिवेशन और मतलब लेने के जाने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके. So yes, Kaivalya, you spoke about the habits. So कौन से आपने हैबिट डेवलप किए थे और आपने वर्बल कैसे इंप्रूव किया? लेट्स टॉक अबाउट वर्बल फर्स्ट. और आपने क्या आप ऐसे कोई 5 हैबिट जो आप सारे अपने व्यूअर्स को बताओगे कि दिस इज मस्ट, आई एम श्योर वन ऑफ देम शुड बी रीडिंग हैबिट, राइट? सो डिड यू हैव एनी रीडिंग हैबिट सिंस चाइल्डहुड और यू कल्टिवेटेड दैट? नो. सो आई वाज नॉट रीडिंग एट ऑल. मतलब कुछ मतलब न्यूज़पेपर या थोड़ा बहुत पढ़ा बट मैं कभी नॉवेल कभी भी बुक या फिर मतलब मैं रीडिंग टाइप बंदा नहीं था पहली बार. तो मुझे कैट में पता था कि मुझे ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक मतलब मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया. तो जब भी सुबह उठो सबसे पहले तो 1 घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है. मतलब अब न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ोगे? मोबाइल फोन को साइड पे रखो, कंप्यूटर स्क्रीन में न्यूज़पेपर खोलो. मतलब मैं जनरली कंप्यूटर स्क्रीन इसलिए प्रिफर करता हूँ क्योंकि कैट इज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. तो आई विल सजेस्ट रीडिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. तो 1 घंटे में कंटिन्यूअस पढ़ता था. सपोज मैंने एक एडिटोरियल या फिर एऑन पे कोई एक ब्लॉग या फिर गार्जियन का कोई एक ब्लॉग पढ़ लिया. फिर मैं मेरे हाथ में एक नोट पेन होगी. मैं आईज क्लोज करूंगा मतलब और फिर सारे पॉइंट्स नोट आउट करूंगा. आई कॉल इट एज अ समरी राइटिंग. ओके. उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरे रिटेंशन पावर बढ़ रहा था. मतलब जनरली वीआरसी में क्या होता है कि आपको बहुत लंबा सा पैराग्राफ होता है. जब आप क्वेश्चंस लगाने जाते हो तब आपको याद नहीं रहता कि इस क्वेश्चन का आंसर किस पैरा में मिलेगा और आपको वापस से 5 के 5 पैरा पढ़ने पड़ेंगे. yes. तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि मतलब ऐसे एक हैबिट बनाओ और कभी भी अपना मतलब शेड्यूल से चीटिंग मत करो. मतलब जब भी मतलब कुछ भी हो, अगर मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ या फिर अगर मैं शायद उस दिन में बहुत बिजी हूँ फिर भी मतलब जो मैंने 1 घंटे का शेड्यूल बनाया वो तो मैं फॉलो करूंगा ही कुछ भी हो जाए. Right. Okay, so I think that's good. So one is reading. Any other thing that you could remember that you developed and that small habit really helped you, like watching some news show or talking to your friends regularly and debating, or many other things that people do? So one thing is you are an MBA aspirant, so मतलब आपको बिजनेस नॉलेज लेने की तो स्टार्ट कर देनी चाहिए. तो मतलब मैंने भी बिजनेस न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किए थे. आप जैसे ही मतलब न्यूज़पेपर्स पढ़ते जाओगे आपको मतलब टर्मिनोलॉजी पता चलने लगेगी. दिस आर स्मॉल थिंग्स जो जनरल लोग कवर नहीं करते, पर जब इंटरव्यू टाइम आएगा ना तब पता चलेगा कि मतलब ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है. ओके. राइट. ओके, फाइन. सो अगर हम क्वांट और एलआरडीआई की बात करें, जैसे क्वांट का तो एक सिलेबस है, राइट? और वीएआरसी में आपको पता है कि कैट में ज्यादा आरसी करना है तो रीडिंग कर लोगे तो शायद वो आ जाएगा. लेकिन एलआरडीआई स्टूडेंट्स को बहुत टफ जाता है. मतलब स्टूडेंट्स जज नहीं कर पाते कि एलआरडीआई में मैं शुरू कहां से करूं और मेरा खत्म कब होगा. तो एलआरडीआई के लिए तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? एलआरडीआई में मैं मानता हूँ कि लोगों को जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि जनरली बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुक से और एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कैट के क्वेश्चन निकल जाएंगे. कैट के क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि जनरली लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर होता है. आप बेसिक से स्टार्ट करो, but after 2 to 3 months when you are done with your basic,
हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आप जितने भी सपोज जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स देते हो उतने ही आपको ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा हाई होगा। अच्छा। और अगर तो मेरा ये सीन था कि मतलब मैंने इतने मॉक्स दिए थे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे हो चुके थे ऑलरेडी। तो अगर कैट का कोई पेपर निकालने जाता हूँ तो मुझे अगर 6 सेट आ रहे तो उसमें 4 या 5 सेट तो ऐसे होंगे जो मैंने प्रीवियसली किए हुए उस टाइप के। अच्छा, सो यू मीन टू से दैट कि अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट्स कर लेते हो वैरायटी के, तो फिर चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप जब भी कोई भी कैट का पेपर देखते हो कहीं ना कहीं वो थोड़ा फेमिलियर लगता है, वो सेटअप आपको फेमिलियर लगता है। इज दिस व्हाट यू आर जब ट्राइंग टू से? आपको फेमिलियर लगता है तो आपको एक स्ट्रेटेजी क्लिक हो जाएगी कि इसको कैसे करना है। तो मतलब अगर आपको सेट 10 मिनट से कम में इजीली हो जाएगा, वरना फिर ऐसा होगा कि आप घूमते जा रहे हो और हो नहीं रहा है। ऑल्सो डीआईएलआर में एक प्रॉब्लम मैंने कॉमनली देखी है। मैं अपने कैट 2020 का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मेरा ये हुआ था कि एक सेट मैंने गलत चूज कर दिया। उसमें सेट सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब यू हैव टू सिलेक्ट दी इजी सेट एंड लीव अपार्ट दी हार्ड सेट। तो मतलब मेरे से ये गलती हो गई थी, गलती से हार्ड वाला सेट उठा लिया था। 10 मिनट तक मैंने सॉल्व किया, कोई आंसर नहीं बन रहा है और मुझे पता चल गया था कि नहीं मतलब अब आंसर नहीं बनेगा। तो जनरली लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि अगर 10 मिनट मैंने इन्वेस्ट कर दिए और 5 मिनट इन्वेस्ट कर लूं या और 10 मिनट इन्वेस्ट कर लूं और वो लोग सेट लीव नहीं कर पाते। मतलब आप एक क्वेश्चन पे इतना अफेक्शन मत लगा लीजिए, इतनी फीलिंग्स मत लगा लीजिए कि आप क्वेश्चन छोड़ ना पाए। राइट, इतना ज्यादा दिल एक जगह पे मत इतना ज्यादा दिल मत लगाइए। मगर मैंने उस दिन वो क्वेश्चन छोड़ा नहीं होता तो मतलब मेरे डीआईएलआर का तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता। राइट, सो कई बार मतलब कहीं ना कहीं ये चीज आपने मॉक टेस्ट के दौरान ही डेवलप करी होगी कि यू डेवलप दैट हैबिट ऑफ लिविंग, यू शुड नॉट गेट टेम्पटेड टू कंटिन्यू विद दैट एक्स्ट्रा टाइम, राइट। तो हम वो मॉक टेस्ट की बात करते हैं, बट उसके पहले आपने जैसे डीआईएलआर के लिए बताया कि पहले हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन पे जाते हैं और उस स्टेज तक हमें चले जाना है कि हमने कम से कम 200-250 सेट्स प्रैक्टिस कर लिए अलग अलग वेराइटी के, एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग वेराइटी के। जहां से आपको मिलते हैं आप प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली उससे चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि कैट के डे पे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फेमिलियर लगेगा, या फिर 6 में से 4 सेट तो आपको फेमिलियर लगेंगे, राइट। तो अभी हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट आपका कैसा था? क्या पहले से ही आपका क्वांट स्ट्रांग था और यू ऑल्सो हैड टू एक्चुअली वर्क स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड यू हैड टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स? कैसे आपने क्वांट को किया? तो व्हाट आई फील इज मतलब क्वांट के जितने भी टॉपिक है 90% ऑफ द सिलेबस इज राइट फ्रॉम योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। बस मतलब कुछ ऐसे टॉपिक है लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड मतलब कुछ एरिया, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे मतलब मॉडर्न मैथ के जो थोड़े हायर लेवल पे। बाकी सब बेसिक्स है। तो मतलब मैंने क्या स्टार्ट किया, क्वांट में आपको शॉर्टकट चाहिए, ट्रिक चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए। तो बेसिक्स में आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। मैं क्या करता था, रीडिंग मतलब एक थ्योरी पढ़ ली, फिर कुछ मतलब पहली एक्सरसाइज होती है, फिर एक दूसरी एक्सरसाइज होती है, तीसरी, मतलब हर बुक में जनरली ये सीन होता है। LOD 1 2 3 की बात, LOD 1 LOD 2 LOD 3। तो ऐसे धीरे धीरे। पर मैं क्या करता था, सपोज एक 30 क्वेश्चन है एक LOD 1 में सपोज, तो 30 क्वेश्चन को मैं एक टेस्ट की तरह रखता था। 30 क्वेश्चंस, राइट। यस, तो मतलब 1 घंटे में मुझे ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करने एज अ टेस्ट, मतलब एज अ टेस्ट। फिर मैं देखता था कि मेरा पोटेंशियल कितना है। ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स मैंने खत्म किए थे। मुझे अराउंड 3 महीने लगे थे पूरा क्वांट खत्म करने में। 3 महीने पूरा क्वांट खत्म करने के लिए? आई थिंक दैट्स अ राइट स्ट्रेटजी। मतलब या बेसिक्स की बात कर रहे हो। सो यस, आपने एक बहुत ही सही चीज बताई। सो कैवल्या इज मेंशन वन वेरी नाइस थिंग गाइस, कि जैसा मैं भी आपको बताता हूँ कि आप 3 से 4 महीने में अपना जो सिलेबस है क्वांट का वो कंप्लीट करो। उस टाइम पे सिर्फ LOD 1 एंड थोड़ा सा LOD 2 तक फोकस करो। LOD 3 तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। पर उसमें भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप LOD 1 ले लेते हो, सपोज अरुण शर्मा बुक से ले लेते हो, तो आप उसके 30 क्वेश्चंस का एक सेट बना लो और अपने माइंड में ही रख लो कि मुझे 1 to 30 है और मेरे पास 45 मिनट्स का टाइम है। तो इससे आपकी जजमेंट भी अच्छी डेवलप होगी, क्वेश्चन पिकिंग स्किल भी आपकी डेवलप होगी और आपका माइंड भी थोड़ा ज्यादा सोचेगा। आई थिंक दैट्स अ नाइस अप्रोच, राइट। सो आई थिंक स्टूडेंट्स कैन यूज दिस। तो फिर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, आपने सारे जो अलग अलग एरिया है वो कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया?
तो जुलाई एंड तक मेरे ऑलमोस्ट बेसिक्स कंप्लीट हो गए थे तीनों टॉपिक्स के। अब मेरे को मैं मॉक दे रहा था, अब मैं स्ट्रेटेजी बना रहा था, मतलब मेरे कैट में मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर आपको वर्बल में जा रहे हो तो मतलब कैसे आप पहले आरसी करोगे या फिर पहले आप बीए करोगे। अगर आप पहले आरसी कर रहे हो तो मतलब सेट सिलेक्शन भी होना चाहिए, मतलब पैसेज आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, आप क्वेश्चन को कौन सा लीव करोगे कौन सा नहीं करोगे। सेम गोज विद डीआईएलआर। डीआईएलआर में मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सपोज 6 सेट्स आ रहे हैं तो आपको आपको क्या करना है कि उसमें से मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता था कि मुझे एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो मुझे एलिमिनेट कर, 2 या 3 सेट एलिमिनेशन कर। तो सपोज 6 सेट आ गए तो मैं जनरल मेरी एक स्ट्रेटेजी थी कि मैं रेटिंग्स देता था। मतलब सपोज मैंने ये सेट देखा हुआ है पहले तो उसको 5 मार्क्स दे दिए, सपोज ये इजी लेवल है तो उसको कुछ बोनस दे दिए, ऐसे करके मैं एक रेटिंग स्केल बनाता था। और अगर मेरी ये रेटिंग स्केल मेरे कट ऑफ से अगर ज्यादा हो रही है तो मैं वो सेट सॉल्व करूंगा। ओके, सो ये रेटिंग स्केल आप कैसे, कौन से पैरामीटर को देखते थे? लेंथ, टफनेस कैसे जज करते थे? बेस्ड ऑन 2-3 लाइंस और बाय लुकिंग एट द मल्टीपल पैराग्राफ्स, देन जॉनर भी देखते थे? आप कैसे डिसाइड करते थे ये? इफ यू कैन जस्ट टेल टू द व्यूअर्स। सबसे पहले मैं 1 मिनट के अंदर पूरा एक सेट स्कैन कर लेता था ऊपर ऊपर से। आपको थोड़ा पता चल जाएगा कितना डेटा है। सपोज एक एलआर बेस्ड सपोज क्वेश्चन है तो आपकी कितनी कंडीशन है, मतलब जनरली ऐसा होता है जितनी ज्यादा कंडीशन हो क्वेश्चन उतना इजी होता है। अच्छा। तो मतलब मैं ऐसे देखता था कि कितने वेरिएबल्स दिए हुए, कितनी ये चीजें दी हुई है, और मतलब ये चीज जनरली प्रैक्टिस चाहते, मतलब वहीं आ गए कि हम मॉक क्यों देते। मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई थी कि मुझे आइडिया आ जा रहा था कि ये सेट कितना टफ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसे एक पर्टिकुलर रेटिंग देता था कि इसे मुझे सॉल्व करना है कि इसे सॉल्व नहीं करना। फिर मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, मैं 15 राउंड बनाता था डीआईएलआर में। राउंड 1 में सबसे इजी क्वेश्चन सबसे इजी सेट पिक करो, राउंड 2 में फिर मीडियम पे जाओ, राउंड 3 तक जनरली लोग मतलब में जा नहीं पा रहा था। अच्छा, ओके, सो आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी इन अ वे टू बिगिन विद, राइट। तो मैं एक बार फिर से उस पे आता हूँ कि ये जो आपका लास्ट 3-4 मंथ्स का पीरियड था उसमें आपने बताया कि आप इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटेजी डिजाइन करते थे। अब मॉक टेस्ट आपने कब से लिखना शुरू किए थे? क्या एक तो आपने बताया कि स्टार्टिंग में ही आपने एक मॉक टेस्ट लिखा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे हो, कैसे एग्जाम है। फिर वो स्टार्टिंग का जो मॉक लिखा उसके कितने टाइम बाद आपने दूसरा लिखा, फिर तीसरा? कुछ आप मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी बता सकते हो? स्टार्टिंग के टाइम जब मैं बेसिक कर रहा था तब मैं ज्यादा मॉक्स नहीं लिख रहा था, मतलब एक मंथ में 1 या 2, उससे ज्यादा मैं मॉक्स नहीं लिख रहा था। मेरे मेन मॉक्स लिखना स्टार्ट हुआ जब मेरा बेसिक खत्म हो गया था। मतलब इन दी मंथ ऑफ जुलाई एंड दी अगस्त। फिर जुलाई अगस्त के बाद तो मैं वीकली 2 या 3 मॉक लिखता था। ओके, राइट। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी। जुलाई मंथ से आप वीकली 2 से 3 मॉक लिखते, मतलब फ्रॉम अगस्त यू कैन से। फ्रॉम अगस्त, राइट, ओके, फाइन। कई बार एक और सवाल आता है कि क्या हमें 2 अलग अलग जगह के मॉक्स की यूज करने की जरूरत है या फिर एक मॉक सीरीज सफिशिएंट है? व्हाट इज द ऑनेस्ट ओपिनियन? जनरली सबका क्वेश्चन होता है। मतलब आई पर्सनली प्रेफर कि मतलब 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप मॉक्स लेते हो तो आपको एक डाइवर्सिटी मिलती है। जनरली ये चीज मैंने देखी है कि जनरली जो पेपर सेटर होता है उसका एक फिर ट्रेंड हो जाता है। मतलब वो जनरली अगर बीएआरसी आरटी का, तो अगर आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर मॉक सीरीज उठाते हो तो मतलब एक वैरायटी मिलेगी और आपको अच्छी खासी कंपटीशन भी मिलेगी। राइट, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड यू कैन पेयर अप विद समवन, ठीक है? क्योंकि आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको 80 मॉक मिल जाएंगे। जैसे अनअकैडमी खुद है वो प्लस सब्सक्रिप्शन में मोर देन 150 मॉक देता है, राइट? ऑफ कोर्स उसके अंदर कैट होता है, जेट होता है, एफटी, ये सारे आ जाते हैं। Guys, you can also go for Unacademy Plus subscription, and if you want, you can use my code SHART10. You will get 10% discount also. But you can definitely pair up with one other person, and you can share the mocks. एक इंस्टीट्यूट का आपने 15-15 लिखा, दूसरे का 15-15 लिखा है, आप इस तरीके से कर सकते हो. So you will not have to shell out more money. That's a good thing, right? Okay. Any other things that you would like to mention? Let's talk about your interview preparation. So when did you actually start preparing for your interview? Was it from very beginning that you were thinking that this is my goal, this is the specialization that I want to go for, and या फिर आपने जब कैट का रिजल्ट आ गया फिर सोचना शुरू किया? नहीं, मतलब जब से कैट की प्रिपरेशन, मैंने पहले भी बताया कि आप एमबीए का एस्पिरेंट हो, कैट का एस्पिरेंट हो,
तो अगर आप अच्छा। एमबीए के एस्पिरेंट हो तो स्टार्टिंग से ही आप मतलब एमबीए की तरह सोचना स्टार्ट कर दो। लाइक बिजनेस नॉलेज को आप थोड़ा थोड़ा हैबिट बना लो। लाइक आई वाज रीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर एवरी डे राइट फ्रॉम माय कैट प्रेप। तो मतलब जब कैट के रिजल्ट आए तब तक मुझे थोड़ी सी हैबिट हो चुकी थी कि बिजनेस वर्ल्ड कैसे चल रहा है। अब कैट दे दी थी, अराउंड 5 दिन में तो आंसर की आ जाती है, तो पता चल जाता है कि मतलब वो इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं आपको। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो मैंने एक टेम्पलेट फाइल के हो गए, या फिर आपके एकेड से क्वेश्चन हो गए, या फिर आपके जीके करंट, मतलब जो आपको ज्यादातर आने के चांसेस है उसके मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख दिए थे। मतलब मैं इस टाइप की स्टोरीज बनाऊंगा, मतलब इंटरव्यू को इस टाइप से मैं अप्रोच करूंगा। तो एक ये मेरा एक बेसिक टेम्पलेट था जो मैं ऑलमोस्ट डेली रिवाइज, मतलब एक बार नजर डाल देता था कि मुझे ये पॉइंटर्स भूलने नहीं। राइट। फिर आता है कि आपका एक एकेड्स आ गया। तो एकेड्स को आपको मतलब यूजी के जो भी है, मतलब हर सब्जेक्ट का ऊपर से ओवरव्यू और कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट हो वो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। एंड देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब लोग अज्यूम करते हैं कुछ भी आ सकता है, पर नहीं। करंट अफेयर्स मतलब जनरली वो लोग बिजनेस नॉलेज से रिलेटेड, या फिर आपकी जो फील्ड है, आपके अंडर ग्रेजुएट फील्ड, या फिर आपके जो फ्यूचर गोल्स है उसके रिलेटेड कोई न्यूज हो तो वो जनरली पूछते। तो उस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलाइन करनी पड़ेगी। ऑल्सो मतलब एक मैं एग्जांपल दूंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे। ये क्वेश्चन मेरे IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू में भी आया था। मतलब मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि करंटली इंडिया की जीडीपी क्या है। Now a normal candidate will answer something like this: India's GDP is near around $3 trillion. करेक्ट। मतलब मैंने इस तरीके आंसर दिया था कि इंडिया की जीडीपी, मतलब तब फरवरी था, तो मतलब इस ईयर की जीडीपी फिगर्स रिलीज नहीं हुए। तो मैंने आंसर दिया कि इस साल की जीडीपी फिगर्स रिलीज नहीं हुए, बट लास्ट ईयर अपनी जीडीपी थी $2.87 ट्रिलियन। अकॉर्डिंग टू मूडीज, नोमुराज एंड ऑल अदर रेटिंग एजेंसीज, दे आर प्रेडिक्टिंग कि अपनी जो जीडीपी होगी वो 8.5% से डिक्लाइन होगी। तो मेरे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अपनी जीडीपी अराउंड $2.68 ट्रिलियन जानी चाहिए इस साल। करेक्ट। तो मतलब इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता कि आप फाइनल आंसर करो, वो जनरली ये चाहता है कि आप किस अप्रोच से जा रहे हैं। मतलब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस रादर देन द आउटकम। उनको वो आंसर नहीं जानना था, उनको आपका थिंकिंग प्रोसेस देखना था। यस, उनको आपका मतलब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जहां पे मैंने अपना IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू शेयर किया था, तो मतलब आपको मतलब मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन गलत हो रहे, बट फिर भी अगर मेरा कन्वर्ट हुआ है, मतलब they were impressed by my way of thinking rather than coming at my final answer. Yes, so we had that interaction right after your IIM Ahmedabad interview, right? Yes. So yes, but I think the answer that you gave for GDP, it was really a very nice way of approaching the question rather than saying many of the students will say approximately 3 trillion and all, but you presented very specific data that the GDP results are yet to be out and it will be like this and all. So I think they really like that. Okay. So now talking about the specialization. So how important it is to start thinking about specialization according to you. Well, did you think about specialization and all when you were preparing for CAT, or you started afterwards, or you are not yet sure कि which specialization do you want to pursue? तो मोस्ट ऑफ द लोगों के प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब वो डिसाइड करते हैं कि एक बार बी स्कूल में चले जाएंगे, उसके बाद जाके हम स्पेशलाइजेशन डिसाइड करें। ये आपके जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इंटरव्यूअर को ये चीज बताते हो कि मैं वहां पे आके डिसाइड करूंगा, तो वो आंसर नहीं चलेगा। मतलब आपको एक आंसर तो सोचना ही पड़ेगा कि नहीं, हमें ये चीज बतानी। अब अगर मेरी खुद की प्रोफाइल की बात करूं तो मेरी प्रोफाइल थोड़ी फिन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। मैंने भी कुछ कोर्सेज किए हुए थे, तो उन कोर्सेज के बारे में मैं अपने इंटरव्यू में बता पाया था, और मेरा पूरा इंटरव्यू फाइनेंस से रिलेटेड जा रहा था। बट अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन बताते हो तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, लाइक कौन कौन से डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी कंपनीज है, किसका कितना मार्केट शेयर है। अगर कुछ उससे जैसे मैंने फाइनेंस बताया तो फाइनेंस का आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी विथ अलोंग योर इंटरव्यू।
Yes, yes. That's a really good thought that you have given to the students. Yes, Kaivalya, some students are asking about how many mocks did you write? If you are, yeah, to give a number, At 50, 50, yes. 30, 40, Around 50. around 50 mocks for only Yes. CAT you're talking about. For only cat. Okay, so guys, I'm sure all of you have understood how many mocks you need to write. Okay, and that would happen only if you start writing it from this point of time, especially if you are prepared with about 2-3 modules of quant, and if you are done with some part of LRDI, I think you can start writing mocks. Of course, the frequency can be lesser, and then you can accelerate. Okay, so yes, Kaivalya, a few other things, few other tips that you'd like to give apart from what we discussed to all the aspirants, because of course, it's a dream come true for anyone to get into IIM Ahmedabad. So many of the students who are hardworking, they don't want to leave any stone unturned, right? What is your last message that you would like to pass on to them? ओके, तो जनरल लोगों का ये प्रॉब्लम होगा कि चलो ये लेक्चर खत्म हुआ, फिर अचानक से अंदर से इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं हम तो पढ़ना पूरा स्टार्ट कर देंगे, इतनी स्पीड से पढ़ेंगे कि मतलब 2 हफ्ते के बाद तो खुद बोर होके खत्म हो जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा मत करो, मेक अ फिक्स शेड्यूल, मतलब धीरे धीरे से पेस बढ़ाओ, मतलब पहले थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़े और एफर्ट्स बढ़ाए, फिर थोड़े और एफर्ट्स बढ़ाए। अचानक से एक्सेलरेशन मारोगे तो फिर गाड़ी आपकी रुक जाएगी। Yes, yes. Gaurav, he is damn serious. You can't expect an I am a convert to mock on this kind of session, right? So definitely you can take his words, and you can also check. He's mentioned that he was writing 2 mocks per week starting from August. So you can definitely do the calculation, which might have gone up during the last days. Right. So guys, I think Kaivalya has given us some really good insights for all the aspirants that slow and steady wins the race. You should not temper with your regular daily plans. Cultivate some really important habits. Anyone can reach to IIM Ahmedabad. Yes, you need to have certain basic criteria. You should be satisfying the basic criteria, which includes your academics, especially if you are from general category and if you are a general engineer male, right? Before we wind up, let's talk about this thing. Almost every general engineer male thinks that he or she, it's very difficult for them to get the call. So according to you, what are the criteria that IIM Ahmedabad is actually looking at? Because we have got so many different, profiles. Okay, sometimes going by their algorithm, they do not satisfy those criteria. Have you come across some cases, and if you can just throw some more light, the exceptions that you have seen? आई एम ऑल्सो जनरल इंजीनियर मेल, तो मुझे ये पता था कि मेरे लिए जर्सी काफी टफ होने वाली है। हाँ। मतलब जनरल इंजीनियर मेल, और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लाइक 10, 12, 90 प्लस ग्रेजुएशन, अगर आपका 85 प्लस है, तो भी आपको जनरल इंजीनियर मेल बोलने के बावजूद आपको 99.7 प्लस चाहिए IIM अहमदाबाद से कॉल लाने के लिए। अच्छा। नाउ कॉल इज नॉट द थिंग, उसको कन्वर्ट करना भी काफी आगे जाके टफ प्रोसेस है। मतलब मैंने पर्सनली कुछ मेरे लोगों को देखा हुआ है कि जिनके अटैच थोड़े बुरे थे और जनरल इंजीनियर मेल थे, तो उनको कॉल रह गई। तो अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज है तो मतलब परसेंटाइल बढ़ानी पड़ेगी, कैट पे ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, 99.9 प्लस लाने पड़ेंगे। ओके, राइट। एंड कोई दूसरी चीजें अपार्ट फ्रॉम योर एकेड्स एंड this CAT percentile, work experience और ये सारा, of course they have mentioned that in their this shortlisting process, but according to you, how important it is to have work experience? You don't have any work ex, right? No, I am a fresher. You are a fresher, so I think in last 7 days I have got at least 50 students who have asked me this question, sir, work ex compulsory hai, should I do it this year, should I do it next year? Right. So see, he's a fresher, and if he can do it, definitely you can do it. The only thing is you need to have slightly better academics, right? Okay, so right. Friends, that's it as far as this particular interaction is concerned. I'm sure all of you would have got good insights. Can you please join me to thank Kaivalya for coming forward and helping all the aspirants to understand how was his journey, and how can you also make it to IIM Ahmedabad. Everyone, if you can just show us a thumbs up in the chat box, that will be amazing. Do not forget to like this session and please share it with your friends. Keep attending my daily live sessions on this channel every day, and you can also join our plus batches. You can go for plus or iconic subscription using my code SHAR10. Last but not least, you can quickly join my Telegram group. It's unacademy_Ronak Shah, and you can have more interactions with me.
So yeah, I think students are quite excited and they are responding really well. Okay, so thanks Kaivalya once again for sparing time, and we wish you all the best, and I'm sure you will have amazing career ahead. थैंक यू सर, और फ्यूचर एस्पायरेंट्स आपको भी मतलब ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि मतलब छोड़ के आना कैट, आई होप मतलब कुछ जूनियर मुझे वहां पे दिखे आई एम अहमदाबाद में नेक्स्ट ईयर. Yeah, that's the spirit. Surely you'll find few more Unacademician over there. Right. Yes. Okay. Thanks everyone. Thanks for joining us and have a great time ahead. Bye. Take care.